Hi everyone, finally the most awaited lecture about glomerular function. So in the previous video, we covered the glomerular structure in which I told you that there is endothelial lining here, which is obviously formed by the tuft of glomerulus capillaries. यहाँ आपके पास endothelial cells होते हैं और these endothelial cells they have fenestrations. So what sort of capillaries are these? Fenestrated capillaries, which are around you can say 70 to 100 nanometer इनका fenestrations का diameter होता है, right? उसके बाद आता है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज मेड बाय टाइप 4 कोलेजन जो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही है और इसमें भी डेंसा आपके पास लेमिना डेंसा होता है एंड देन लेमिना रेरा एक्सटर्ना एंड इंटरना इज टुवर्ड्स द blood vessels. Then you have your epithelial cells. Visceral epithelial cells इस तरफ होते हैं जिनके podocytes होते हैं and then you have parietal visceral cells जिनके podocytes नहीं होते. And then you have the epithelial cells of the proximal convoluted tubule. Yahi I told you that whatever substance is passing by, it has to encounter two checkpoints. The first one is the fenestration here. It should first ensure that whether it can pass through these 70 to 100 nanometer fenestrations or not. If it can, well and good, it will pass through. Then यहाँ इसके बीच में जो पोरोसाइट्स हैं इनका दो काम है. एक तो they keep these epithelial linings intact. ये इन्हें bind करके रखती हैं with the basement membrane. दूसरा the podocytes they also keep them interdigitated with each other. उन दोनों को दोनों epithelial cells हैं they'll be you know touching itself each other and binding each other और एक साथ intact रहेंगे. So that's thanks to the podocytes. ठीक है. अब ये दो फंक्शन हो गए हमारे पोडोसाइट्स के. Also another thing, जब ये interdigitation होते हैं इनके बीच में एक slits आ जाते हैं. Those are the filtration slits. In the modern physiology we understood कि इनके बीच में प्रोटीन पड़ा था जिसको कहते हैं nephrin and that forms filtration diaphragm. So this is the second checkpoint that your any substance that is passing by it has to go through. और ये होता है 20 to 30 nanometer इसका diameter. तो अगर वो इससे भी pass on हो सकता है तो well and good. And the second thing is that this is a size and a charge barrier. तो अब साइज तो हमने कर लिया. What about charge? चार्ज का ये है कि पूरी चीज नेगेटिवली चार्ज होती है. इवन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके ऊपर पोली एनायनिक प्रोटियोग्लाइकेंस लगे होते हैं लेमिनिन एंड फिब्रोनेक्टिन. ठीक है. और इस सिर्फ यही नहीं बल्कि एंडोथेलियल और एपिथेलियल लाइनिंग ये भी नेगेटिवली चार्ज होती है. ये क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है? क्योंकि इनके ऊपर साइनोग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं जिसकी वजह से दिस एंटायर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज हाईली नेगेटिवली चार्ज. तो एनीथिंग दैट्स नेगेटिव इट वोंट बी एबल टू पास थ्रू. व्हाई? बिकॉज इट विल बी रिपेल्ड. सो एनीथिंग दैट्स पॉजिटिव इट विल बी एबल टू इजीली पास थ्रू. इसके अलावा ये अब दिस इज बेसिकली अ two-way checkpoint, right? इसमें both you have to check even the sizes and even the charges. So just small molecules then they can obviously easily pass through and they can freely filter. For example, amino acid and glucose. They can do large molecules are like plasma proteins. They cannot filter, and obviously even your red blood cells, white blood cells, and platelets they can't even pass through as well. But plasma proteins कौन से तीन टाइप के थे? Albumins, globulins और fibrinogen. जो albumin है these are the smallest, fibrinogen is the largest. अब albumin का size is just perfect for it to pass through both the checkpoints. लेकिन एक मसला आता है. Since I told you it's a double checkpoint, इसमें charges भी होते हैं और size भी देखना होता है. तो size तो हो गया albumin का perfectly fine, लेकिन what about the charge? Charge is negative, therefore it repel होगा and it won't pass through. So this is all about the glomerular structure and the entire filtration membrane. ये glomerulus का tuft था, ये आपका Bowman's capsule था, आगे आपका पूरा nephron continue होगा, ये आपके बीच में basement membrane है. ठीक है. When you talk about the function, इसका यही function है कि if obviously we have what's our cardiac output? 5 liter. 5 liter of blood is being pumped by our heart per minute. तो हर मिनट हमारा जितना हमारा heart pump करता है blood उसे बोलते हैं cardiac output per minute. The volume of blood that is being pumped by our heart that is known as cardiac output and that is 5 liter. इस 5 liter में से हर minute 1 liter of the blood goes to the kidney. So renal ब्लड फ्लो कितना है? 1 लीटर. तो 5 मिनट में हमारा 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी किडनीज दोनों किडनीज हमारा पूरा इंटायर 5 लीटर ऑफ द ब्लड उसको फिल्टर आउट कर देते हैं. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फिनोमेना. तो 1 लीटर इज द ब्लड फ्लो. तो 5 लीटर कार्डिक आउटपुट आ रहा है लेकिन उसमें से 1 लीटर इज द रीनल ब्लड फ्लो. और उसमें से भी आई टोल्ड यू 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स होते हैं. जो सेल्स है ये तो फिल्टर आउट नहीं होते ना, तो ये तो स्मूथली आगे चले जाएंगे. तो पीछे क्या रह गया? लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 600 ml ऑफ प्लाज्मा रह गया, वही फिल्टर आउट होगा. उसमें से भी 65% ऑफ इट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनिशियली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
बाकी 15% रीअब्जॉर्ब होता है इधर, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो शुरू के 2 पोर्शंस में 80% रीअब्जॉर्ब हो गया। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज इम्परमेबल, इसमें कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। यहाँ जाकर हमारा 15% अगेन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइन ट्यूनिंग इधर होती है। इसमें इवेंचुअली हमारे पास 5% रह जाता है, और उसमें से भी मोस्ट ऑफ इट इज रीअब्जॉर्ब, और 1 ml यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, कंटिन्यूइंग, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिनरी एक्सक्रीशन। अब यूरिनरी एक्सक्रीशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस मीन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट्स एक्सक्रीटेड, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? हाँ, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट गेट्स फिल्टर्ड, राइट? पहले तो वो डालो, जो भी फिल्ट्रेशन आ रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो सब डाल दिया हमने, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, we have to remove that amount which is reabsorbed. एक certain amount वापस से reabsorb हो जाती है, this should be reabsorbed, not resorption. resorption bone की होती है, this is something else, reabsorption, ठीक है। सर्टेन अमाउंट इज रीअब्सॉर्ब, उसको तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है पहले, ठीक है, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट्स अगेन सिक्रीटेड इनटू योर नेफ्रॉन्स, तो उससे भी ऐड ऑन करना है। सो वेरी सिंपल, यूरिनरी एक्सक्रीशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो भी आ रहा है उससे माइनस करना है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, एंड देन यू हैव टू ऐड इन द ट्यूबुलर सिक्रीशन। वेरी बेसिक फॉर्मूला, नथिंग, नो रॉकेट साइंस और नो स्पेशल मैथ्स इन्वॉल्व। When you talk about glomerular filtration rate, GFR, this is something that we've heard about a lot. What exactly is glomerular filtration rate? This is the speed at which the glomeruli are making filtrate from the plasma per minute. तो जितना भी प्लाज्मा आ रहा है यहाँ से, remember I told you कि सिर्फ प्लाज्मा आएगा, सेल्स तो आराम से आगे चले जाएंगे। So whatever filtrate is made from that plasma per minute, so the speed at which the entire work is happening, जिससे वो आपको filtrate मिल रहा है from the plasma per minute, that speed is basically your glomerular filtration rate. Anything, whenever rate word आ जाता है इसका मतलब speed ही होता है. So speed at which with which the glomeruli are making filtrate from plasma per minute. So this sounds like a mouthful. It's an extensive definition, but it has everything. Speed, they say glomeruli, they're making filtrate from plasma per minute. GFR, primarily it's based on two very important factors. One is the net filtration pressure and the other is the filtration coefficient. These are two things that should be on your finger tips. So जब भी आप GFR की बात करो, it's based on two very important things. One is net filtration pressure, the other is the filtration coefficient. अब net filtration pressure क्या है? Now net filtration pressure, or short for NFP, बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स। एक होता है फोर्सेस व्हिच आर फेवरिंग फिल्ट्रेशन, एंड देन यू हैव द फोर्सेस व्हिच आर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। तो आपके पास दो फोर्सेस होती हैं ऑब्वियसली, एक ऐसी फोर्सेस जो फिल्ट्रेशन को फेवर करें कि हाँ फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, और दूसरी ऐसी फोर्सेस हैं जो अपोज करें फिल्ट्रेशन को। अब यहाँ you need to pay attention because these can get confusing. There are four factors. So first of all, कौन सी forces है जो favor कर रही हैं filtration को? Very important, हमारे पास है hydrostatic pressure from the glomerular capillaries. तो वो जो hydrostatic pressure है जो मैंने green में बनाया हुआ है, this favors filtration. ये कह रहे हैं हाँ filtration हो, obviously यहाँ this is a very high filtration network. जो हमारे glomerular capillaries का duct है ना, this is a very high filtration नेटवर्क, क्योंकि इसके आगे भी आर्टीरियल्स हैं, इसके पीछे भी आर्टीरियल्स हैं। तो इसका फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ दिस रीजन कितना है? इट्स 50 मिलीमीटर मर्करी। नॉर्मली आर्टीरियल्स का 30 या 20 मिलीमीटर मर्करी होता है, लेकिन दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी इफेक्टिव सिस्टम, तो इसका 50 मिलीमीटर mercury pressure है, and this is the hydrostatic pressure of the glomerular capillaries. Obviously यहाँ जब pressure ज़्यादा होगा तो filtration को ही favor करेगा कि हाँ filtration होनी चाहिए. So this is a filtration favoring factor. ठीक है, इसके बाद दूसरा factor है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम colloidal pressure. तो colloidal pressure जो है, जहाँ का भी colloidal pressure होगा उसका मतलब है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो ब्लड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसको आपने ऐसा एज्यूम करना है कि ये ब्लड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो इन दिस वेरी केस, ये जो कोलाइडल प्रेशर है बाउमन्स कैप्सूल का जो कोलाइडल प्रेशर है, ऑब्वियसली यहाँ जो प्रोटीन्स पड़ेंगे वो ब्लड को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो दिस इज अगेन अ फेवरिंग कंडीशन। तो ये दो फेवरिंग फैक्टर्स है, एक इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और दूसरा है कोलाइडल प्रेशर ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल। जो प्रोटीन्स पड़े हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं इस सारे ब्लड को। एंड व्हाट आर द वैल्यूज ये हैं कि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये तो 50 मिलीमीटर मर्करी है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन कोलाइडल प्रेशर 0 है, एंड देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज अबाउट हियर। व्हाई? बिकॉज 0 इसलिए क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ से जो प्लाज्मा कंटेंट है सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है,
ऐसी नौबत ही नहीं आती कि यहाँ आकर प्रोटीन्स हो, तो कोलाइडल प्रेशर कैसे हो सकता है? कोलाइडल प्रेशर तो होएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ तो प्रोटीन्स है ही नहीं। प्रोटीन्स जितने भी थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो तो पास आउट ही नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव प्रीवियसली डिस्कस। एल्ब्यूमिन तक पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी भी नेगेटिव चार्ज थी, हालांकि वो फिट एज इन विद रिगार्ड्स टू इस साइज। और उसके अलावा सेल्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें फिल्टर आउट नहीं होंगी, वो सब इधर जाएंगी, तो इसका कोलाइडल प्रेशर विल बी जीरो। तो कोलाइडल प्रेशर यहाँ जीरो होगा और ये 50, ठीक है। तो फेवरिंग फोर्सेस जब आप एड अप करोगे तो दे विल बी 50 millimeter mercury of the favoring forces. What about the opposing forces? Opposing forces, let's discuss those as well. अब इसका भी तो कोई प्रेशर होगा, एक प्रेशर इधर भी है, ठीक है। There's a certain amount of pressure of this Bowman's capsule also. So that hydrostatic pressure of Bowman's capsule. This is hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. This is the opposing force. और दूसरी जो कोलाइडल प्रेशर है of your glomerular capillaries. अब glomerular capillaries के अंदर तो है ना प्रोटीन्स, वो जो हैं प्रोटीन्स, they're going to suck in the blood bag. Alright, so continuing, I was talking about the forces which are opposing filtration. So सबसे पहले हमारे पास आ गया था the colloidal pressure of the glomerular capillary. So glomerular capillary की जो भी colloidal pressure है इधर होगा, obviously जितने भी proteins है, they're going to try to suck the blood back, है ना, तो वो अपनी तरफ blood को खींचेंगे. So obviously this is going to oppose filtration, right? That's how you have to imagine the entire situation. And what's the colloidal pressure of the glomerular capillary? It is 30 millimeter mercury. This is the pressure which is exerted by the plasma proteins which are not filtered. 30 millimeter mercury. And what's the other force which is opposing filtration? That's the hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. तो ये जो Bowman's capsule हमने बनाया हुआ है, इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो अपनी तरफ ब्लड को, सॉरी, ब्लड को अपनी तरफ मतलब लेकर आएगा ना, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द अपोजिंग फैक्टर्स, जिसका अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वॉमेंस कैप्सूल कितना है, 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी, राइट। So 10 millimeter mercury is the hydrostatic pressure in the Bowman's capsule. इनको आप sum up करेंगे, you will get 40. You have to subtract the two favoring, and this is the favoring and this is the opposing, इन्हें subtract करो and you will get the net filtering pressure. Net filtering pressure आपका कितना है, 10 millimeter mercury. So these are some basic maths that should be on your fingertips, ठीक है। These are the basic maths जो आपको भी याद होनी चाहिए. First of all हमारे पास, let's recall, favoring हो गया hydrostatic pressure of the glomerular capillary which is 50 millimeter mercury, और colloidal pressure of the Bowman's capsule which is 0, तो ये all together this is 50. दूसरा अपोजिंग कौन सा होगा, कोलाइडल प्रेशर द ग्लोमेरुलस, बिकॉज ऑब्वियसली दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, दे आर गोइंग टू ट्राई टू ब्रिंग बैक द ब्लड. तो ये कितना था, दिस इज 30 millimeter mercury. And what about this? This is the hydrostatic pressure of the Bowman's capsule. This is also an opposing force, ठीक है, और ये कितना है, 10. So 30 plus 10 is 40. So what is net filtering pressure? It will be 50, which is the favoring forces, minus the opposing forces, which is 10 millimeter mercury as your net filtering pressure, ठीक है. So these are some basic values, and this is one thing that people tend to forget, so please do not forget it, that PBC, uh, PGC जो है, this is a good force, and PBC is a bad force, ठीक है, good force, and this is a bad force, ठीक है. Now when you move forward and you talk about the other factor which affects GFR, एक तो हमने net filtration pressure कर लिया, उसमें भी एक force favor कर रही है, एक oppose कर रही है. दूसरा क्या है, filtration coefficient. Filtration coefficient में what is filtration coefficient? Now this might be sounding strange to you, लेकिन इसकी एक certain value होती है. Filtration coefficient की एक proper एक amount होती है. What is that amount or what is that value? That is 12. Filtration coefficient है 12. ये आपने याद रखना है. Filtration coefficient की क्या value है, 12. Just have that on your fingertips. अगर you cannot, तो I'll tell you the entire maths. If you can learn the maths, well and good for you. अब फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है. एक तो परमेबिलिटी ऑफ द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, जो भी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है ना, उसकी कितनी परमेबिलिटी है, एक उस फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है. दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन. तो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन जो भी है ये, इसकी परमेबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है, दूसरा उसके सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट होता है. दीज आर द टू फैक्टर्स जिस पर आपका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिपेंडेंट है. तो जो परमेबिलिटी वाला फैक्टर है, इसको वी आल्सो कॉल इट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. तो ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है तो permeability of the filtering membrane पे डिपेंडेंट है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट है. जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा क्योंकि दीज होल्स आर ह्यूज, राइट. सो इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा, तो इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट्स ग्रेटर, देयरफॉर कोएफिशिएंट विल आल्सो बी greater, because your coefficient is formed basically by the product of these two things, the permeability of the filtering membrane and the
सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, राइट। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे ये सरफेस एरिया ज़्यादा, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दीज वर टू फैक्टर्स। अब समरी में GFR इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेट फिल्टरिंग प्रेशर। नेट फिल्टरिंग प्रेशर हमने 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी कैलकुलेट किया था। अगर नेट फिल्टरिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि गुड फोर्सेस माइनस द बैड फोर्सेस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जब गुड फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब आपका GFR ज़्यादा होगा तो नेट फिल्टरिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, तो GFR अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। जब आपका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है ना, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ही कह रहे थे ना, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, जब ये ज़्यादा होगा तो आपका GFR फिर से ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हमने ये इसकी एक इक्वेशन बना दी, GFR इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट इज बेसिकली GFR बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है 10, और कोफिशिएंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 12 है। बट लेट्स सी द कैलकुलेशन। कार्डिक आउटपुट 5 है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसमें से 4 लीटर चले जाता है पर मिनट। वी टॉकिंग अबाउट 1 लीटर जो है ये आपका रीनल ब्लड फ्लो है, उसमें से भी 600 ml प्लाज्मा है, इसमें से भी 20% जो है दैट ओनली पासिस थ्रू ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसमें से भी 600 ml में से भी 20%, मतलब 120 ml पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस, मतलब इट गेट्स फिल्टर्ड। इसमें से भी 600 का 600 सॉरी पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस, लेकिन इसमें से सिर्फ 20% गेट्स फिल्टर्ड। जो बाकी 80% है इट गोज बैक टू द इफ्रेन आर्टीरियोल्स। तो ये पूरा सॉरी इट गोज, ऑल ऑफ इट गोज टू द ग्लोमेरुलस, मैंने शुरू में मिस्टेक कर दी थी। लेकिन 20% से फिल्टर होता है, तो 120 इज फिल्टर्ड, राइट। तो इसमें हमें ऑलरेडी पता चल गया कि व्हाट इज द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। व्हाट इज GFR, इट्स 120, क्योंकि 120 ml जो ब्लड है दैट इज फिल्टर्ड पर मिनट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। 600 क्या है, ये रीनल ब्लड फ्लो है, और इसमें से कितना आपका 600 क्या है, ये रीनल ब्लड फ्लो है, और इसमें से कितना आपका फिल्टर हो रहा है, तो दैट इज 120, ये क्या होगा आपका GFR, ठीक है। इधर से वी हैव अ न्यू value which is filtration fraction. Filtration fraction क्या है, this is a fraction of the plasma that has been filtered, that's a fraction of the plasma जो कि filter हुआ है। तो total plasma कितना है हमारे पास 600, right, that's our renal plasma flow, और इसमें से कितना filter हुआ है 120, तो इसका जो fraction है वो क्या होगा, that would be your 0.2। कैसे, इसको आप करो 2 0.2 6 point, हाँ तो 0.2 आ रहा है आपका। So the fraction of the plasma that has been filtered is the filtration fraction which is formed by GFR by venous blood flow। अब normal जो आपका filtration coefficient होता है, I told you filtration coefficient जो है, उससे पहले मैंने आपको बताया था GFR is this, right, and filtration coefficient will be this। What is your GFR, it is 120। What is your filtration net filtration pressure, that's 10। तो इसके बाद आपको क्या मिला, coefficient 12। What will be the unit, ml per minute and millimeter mercury, so ml millimeter mercury per minute per total glomeruli in the total renal substance of both the kidneys। तो जितने भी glomeruli हैं, आपके कितने नेफ्रॉन्स होते हैं 1.2 मिलियन, तो दोनों किडनीज में 2.4 मिलियन नेफ्रॉन और 2.4 मिलियन ग्लोमेरुलाई हैं। तो उन सब ग्लोमेरुलाई का टोटली मैं आपको बता रही हूँ कि इतना कोफिशिएंट है। पर और अगर आपका एक किडनी का वे 150 ग्राम्स है, तो दोनों का 300 ग्राम्स होगा ना, तो 300 ग्राम्स ऑफ किडनी सब्सटेंस में ये आपका फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है। इफ दे क्वेश्चन यू कि 100 ग्राम्स ऑफ किडनी सब्सटेंस में KF कितना होगा, हालांकि इतने इंट्रिकेट क्वेश्चंस नहीं आते, बट लेट्स से दे आस्क यू दिस, सो 12 300 ग्राम्स के लिए होता है, राइट। तो व्हाट वुड बी द KF फॉर 100 ग्राम्स, तो इसके लिए यू कैन डू द बेसिक अलजेब्रा एंड यू विल गेट टू नो that 100 into 12 by this would be 300, right? So 3 1 are 3, 3 4 are 12, so you'll get 4 as your answer. Let's see, yes, correct। So this was basic your KF and everything। उसके बाद there are some diseases जो कि KF को alter कर देते हैं, जिसमें दो चीज़ alter होंगी, या तो hydraulic conductivity which is the permeability of your glomerular capillary membrane, या तो वो alter होगी, या तो total surface area alter होगा। तो अब इसके लिए the two things, what are the two things or what are the diseases जो कि ये alter करेंगे, एक second, first of all, yes। So एक डिजीज है डायबिटीज मेलाइटिस विच इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होगा कि परमेबिलिटी उसकी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इट्स गोइंग टू थिकन योर मेम्ब्रेन, द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन उसको थिकन कर देता है, जिसकी वजह से GFR कम होगा, एंड ये दोनों डिजीजेस की वजह से ये थिकन हो जाता है, देयरफॉर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। जबकि देयर टू डिजीजेस जिनकी वजह से सरफेस एरिया कम होता है, वो कौन से हैं, पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनकी वजह से फिब्रोटिक मास आ जाता है, और
फिर सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो दिस वाज सम ऑफ द क्लिनिकल्स। अब जब ऑब्वियसली जब ये दोनों मसले होंगे, या तो थिकन हो गया तो परमेबिलिटी कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो there'll be decrease in the glomerular filtration rate, and therefore this will lead to renal failure.